भरजाई तेरी फिर टुर गई। अरे यार ना करे यार भरजाई तेरी नु कौन समझावे, मैं ते आग गया यार। अच्छा सारी नौकरी यार तरले करदे गुजर गई यार। ओए होए ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। बिल्कुल ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ओए होए ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ जी जी ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੇ अच्छा ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ओके ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਫਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ हाँ हाँ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ ਲਿਆਵੇ। हाँ ਨਾਲੇ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਐਸ ਬਿਨ ਬੰਦ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ ਫਰੂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਰੂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਆ ਗਏ हैं। ठीक है ਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਇਟ हैज बीन शुरू। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਨ ਫਰੂਟਸ का। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਸੁਲਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ आपने मेरे साथ रहना है कि नहीं। हाँ बस वो मुंह से निकल गया एब्सोल्युटली नॉट। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਜਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, अच्छा ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ठीक है ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ पौने 2 घंटे बेहोश रहना। करिएगा मैं बिल्कुल बीच में हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेहमान प्रोग्राम ਦੇ बीच ओ या मेरे अल्लाह ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ हाँ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ। आप उनके ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। हाँ ਬਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਇਬਰਾਰ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ इब्रारो लाख का ਇਬਰਾਰ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ ਬਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਨੇ। केड़ी ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? वो कह रहे कोई पार्टी नहीं है अभी मेरी ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਭਰਜਾਈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ हैं ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कौन भर जाई ਭਰਜਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਬਰਾਰ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ। नहीं और से देखो हाँ नहीं वो इकबाल टाउन वाले मैं घर गया वो तो नहीं है। नहीं अब आप ये बात करके यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है। बचत करें। बात सुनो एक बाल टाउन कौन सा वो डिफेंस रहते हैं हाँ डी है सॉरी ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। नहीं वो माफ करना असल जो हैनक दी गड़बड़ हुई है। मैं हुण पछाणिया माशाअल्लाह किरण नाज साहबा नहीं है नहीं मैं कह रहा भी किरण नाज साहबा एक हैगे ने उन्हों दा मैं फैन होया हाँ ते या मैं आशा जी दा फैन अच्छा। होया। आशा नाज साहबा आजकल ते माशाअल्लाह चिड़ी उड़ी सेठी साहब दे नाल ने ना ते भाईजान सर बगैर नाश्ते तो मैं नहीं जानता। अरे यार नहीं नहीं कल दा नाश्ता भी इन्हों ने कराऊं। अब खुदा का खौफ करो ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा जी ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਸਾਰੇ ਟੋਡੋ ਦੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਵਿਰਾਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ये मैं बताता हूँ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਨ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आई नो ਬਸ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ। ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਨ Sure, why not? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਯਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ना कर 6 ਡਾਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ओ यार अब क्यों डाले ਕੱਲੇ ਡਾਲੇ ਨਹੀਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। वेलकम बैक जी बताइए अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। ਬਸ मेरा नाम बिस्मा जावेद है
और मैं शायरी सुनाना चाहूँगी। शायरी सुनाना चाहिए, किसकी शायरी है? फैज़ अहमद फैज़ की। फैज साहब की, चलिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वाह वाह बेटा, क्या बात है। अच्छा, नौजवानों के अंदर ये शायरी का बिल्कुल। शगफ और बिलखुसूस फैज़ को पढ़ना ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैंने बड़े अरसे के बाद सुना है किसी नौजवान बिल्कुल। से। Who's next? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हजवेरी है और मेरा जो क्वेश्चन है वो अब्रार सर से है कि आप तो सिंगर हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, हर कोई पॉलिटिक्स में आ सकता है, ये आपका एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मैं समझता हूँ सिंगर्स या आर्टिस्ट जो होते हैं ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। जितना किसी का दुख दर्द ये समझ सकते हैं, या क्योंकि हसास होते हैं ना, सो उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए इनका, फनकारों का तो ज़रूर आना बनता है पॉलिटिक्स में। ताहम चूँकि ये एक पावर गेम होती है और इसमें ऐसे लोग जो छीना झपटी के माहिर होते हैं, मार कुटाई के या इस टाइप की चीज़ें, वो आगे चले जाते हैं। कम से कम हर फनकार को फिलंथ्रोपिस्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता तो उसको कोई ना कोई इदारा बना के लोगों की खिदमत में ज़रूर आना चाहिए। वासे साहब जैसे लोग जो हैं ये किसी न किसी सूरत में कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरा चलो नाम आ गया, ये आके खुद डोनेट भी कर रहे होते हैं। ये बताना ज़रूरी नहीं था वैसे, लेकिन जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये इस तरह की एक्टिविटी, तो ये फ़नकारों की सेंसिटिव होने की दलील है, सबूत है एक तरह से। सो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों को खुल के सामने आके काम करना चाहिए आवाम के लिए। थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट है क्योंकि बिजी भी बहुत होते हैं। मैं वासे पे मैं कि तुसी डोनेट कर दे जे पैसे, दस दे क्यों नहीं, कहते 1700-1800 रुपए का मैं की दसा। प्लीज, कौन है नेक्स्ट? जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हलीमा राशिद हूँ और मेरा सवाल मैम आयशा नाज से है कि क्या आपके ख्याल में न्यूज़ एंकरिंग और एक्टिंग में कोई सिमिलैरिटी है? हलीमा पहले तो नहीं थी सिमिलैरिटी, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम मैंने देखा कि अब उसमें एक्ट करते हैं लोग, आवाज़ के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल होता है। अगर हम पीटीवी देखें तो इशरत फातिमा साहिबा और खालिद हमीद साहब वो एक ही फ्लो में एक ही पिच पे खबरें पढ़ा करते थे और चेहरे तासुरात से आरी होते थे। अब अगर आप कुछ एंकर्स को देखें तो वो पूरे इमोशनल वे में खबर जिस नेचर की हो उसको वैसे ही अदा कर रहे होते हैं। सेंसेशनलाइज भी थोड़ा ज्यादा हो गया हो है, गया बहुत है। ज्यादा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में जाना। पड़ोसी मुल्क वहां देखे से ना। ये उड़ गया है, अरे भाई उड़ गया तो कह दे आराम से, वहां से उड़ गया है। मियां साहब का त्यारा उड़ गया, मियां साहब का त्यारा ही उड़ा है ना, बस क्या, मियां साहब का त्यारा उड़ गया, वो लैंड कर गए हैं, वो वहां जलसे में पहुंच गए। एक नॉर्मल आपको ना वोकली इतना वो चार्ज कर देते हैं कि खबर उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी खबर वो बता देते हैं उसको उस तरह करके। रेटिंग्स की दौड़ है बेसिकली, इस पे बहस हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अब होता है कि एक्ट करते हैं ये होता है। और आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये काम भी इंडियन न्यूज जर्नलिज्म के अंदर शुरू हुआ था, टेलीविजन न्यूज जर्नलिज्म में, और वहां पे भी आज तक ने ये शुरू किया था, जहां से उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट में सारों ने ही ये करना शुरू कर दिया। और अब आपको ये खबर मिलती है कि बात इतनी सी भी नहीं होती मगर सनसनी फैला देते हैं, क्योंकि अब आपको इंटरेस्टेड भी तो रखना है ना उन्होंने कैसे। वैसे मुझे ये बताइए, ये जो आपका हेडगियर है ये क्या कोई फैशन स्टेटमेंट है या फिर सर्दी की वजह से आपने पहना हुआ है? स्कार्फ की एक टाइप ही है, टर्बन है, टर्बन बांधा हुआ है। टर्बन बांधा हुआ है। एक तो ये थोड़ा सा हिजाब भी हाँ इसमें शो होता है। बैकग्राउंड क्या है इसका? You just wanted to wear something different or is it part of some tradition or something? यूएई में मोस्टली जो ये अरबी हैं, लबनानी है, जो लबनानी वुमेन होती हैं वो उस तरह होती हैं। Okay. तो बैकग्राउंड वहाँ से है तो थोड़ा। वहां से ड्राइव हुआ हुआ ये, ठीक है जी।